buy maybe a net buy of 700 tons of gold a year, and we lock it in our almirahs and cupboards. Yes, the balance sheet has improved dramatically as far as households are concerned, but it's an unproductive asset. You were giving me some data on gold. Yes, Shailji, like you said, ETF is the easiest to sell. If I give some things in perspective, there is 1,76,000 crores of ETF alone in the mutual fund industry. फिर वो multi asset fund में कहीं ना कहीं मिला मिलू के 2.5-3 लाख करोड़ is there in physical form, where you just need a click of a button, you can sell it in a unitized form and feel happy that you contribute. Second is your balance of payment projected for this year is $65 billion. That's your deficit. So that as a proportion of gold holding is 1.5% for the year. One is you can see it as a gold import ki proportion. You can also see what is your projected balance of payment ki problem. Second. Third, now let's look at Anand Rathi's aakada. Very simple, we said that let's put an objective. We always like to put an objective in our company. Objective is solve 1% of gold import problem for this year. If this is our objective as a 403 relationship managers, which I count myself and my CEO also into one, what is the amount of gold each of my client average needs to sell? We solved for it and we came to anywhere between 100 to 120 grams per client if we got them to sold average. कोई क्लाइंट आधा केजी बेच देगा, कोई क्लाइंट कहेगा नहीं मैं बेचूंगा, तो एवरेज 120 बिकवा दूंगा, तो मैं देश का 1% प्रॉब्लम 403 प्रोफेशनल सॉल्व कर सकते आरएम्स देश भर में. I would not be surprised that there are 4 lakh distributors, RMs, all of those who have their clients' ears and eyes. So if they also did this for the country, will we be able to solve 30% of the problem, 40% as a group, and not be worried about company का कैसे फायदा होगा, इससे हमारी रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी, वो सब छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, बढ़ जाती है, ऊपर वाला दे देता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो. So that's where we did the math. 13,800 people, 1,020 grams will give us almost about 3,500 crores of sale value. 3,500 crores of sale value is going to be 1% of the 3.5-4 lakh crores which I project as the gold import this year. अच्छा, कमाल की बात ये है अजीज साहब, इस वक्त you need to have an habit to at least capture the all-time high as a profit booked. It could be any asset. We are talking about gold now, but we have always trimmed gains in equities to either meet immediate demands or, move towards bond funds, move towards fixed deposit. And this is possibly the right time to shift money into equities. March में आपने 800 करोड़ रुपए के अपने clients को funds खरीदवाएं, they are very happy. Yes, Shailji, that is of course true. जैसे आपने कहा ना, रीबैलेंसिंग, इसको प्यार से रीबैलेंसिंग भी कहते हैं, राइट? किताबों में देख लीजिए, जैसे आपको मैं क्या बता रहा हूँ, राइट? ऑफ कोर्स किताबों में लिखा हुआ है फाइनेंस की, भाई रीबैलेंस कर लीजिए. बट एक चीज इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहूंगा कि देखो, गोल्ड से और एफडीओ से इंडियंस का इतना जज्बाती प्रेम है, क्योंकि कोई ऑर्नामेंट होता है, जैसे कल से हम रिसीट लेने लग गए हैं क्लाइंटों की जब बिक रहा है, ताकि दूसरों को प्रोत्साहन मिले. जब हम ये इंटरनेट पे डालेंगे, हर रिसीट, हर दिन मैं रिसीट आफ्टर रिसीट डालूं, यहाँ आज ज्ञान बांट दूं, और 3 महीने बाद कोई मुझे पूछेगा नहीं कि तूने बिकवाया कि नहीं बिकवाया. तो आई वॉलंटरीली एज अ कंपनी वांट टू पुट रिसीट्स and testimonials of those people. So here I want to not compare two assets, because if I compare with mutual fund, लोग कहते हैं यार मेरा तो गोल्ड से जज्बात ही है रिश्ता, म्यूचुअल फंड से जज्बात तो है नहीं. तो गोल्ड से ज्यादा जज्बात, आपको एक प्रश्न अपने एज अ व्यूअर आपको एक ही चीज पूछनी है, आपको गोल्ड से ज्यादा प्रेम है देश से? बिल्कुल. गोल्ड से वापस प्रेम दिखा सकता हूं मैं 2 साल बाद, कोई क्या हो जाएगा, वापस खरीद लेना, 4% वापस गिरेगा तब खरीद लेना 2 साल बाद. नहीं, और फिरोज जी, ये तो हमने देखा ही है कि जैसे कि गोल्ड है वो झटकों में बढ़ता है. 10 साल कुछ नहीं किया गोल्ड ने, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पिछले 3 साल से चल रहा है वो आगे भी 3 साल चलेगा. ऐसा कभी नहीं होता. रिटर्न बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर, आप इतना सही फरमा रहे हैं शैल जी, बट समझाए कैसे, जज्बात में आ जाता है आदमी. बट बिल्कुल सही फरमा रहे हैं. देख लीजिए ना, आप आज भी रुपी में फिर भी ठीक ठाक है गोल्ड, क्योंकि ड्यूटी बढ़ गई, राइट? और डॉलर अप्रिशिएट हो गया. गोल्ड आज भी थोड़ा पीक पे ही लग रहा है, ऑलमोस्ट 179 तक गया था, पता नहीं जितना भी है 1.5 लाख के ऊपर ही है. बट
ग्लोबल मार्केट इज द राइट मार्केट टू लुक एट गोल्ड. आप कोई भी इंटरनेट खोल लीजिए, गोल्ड प्राइस पीक इन डॉलर टर्म्स 5620 कुछ आएगा, और आज की क्या वैल्यू है, 4500 है. ऑलरेडी वो 20% गिर चुका है. इंडिया में दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का प्रीमियम आ गया, रुपये की डेप्रिसिएशन आ गई. करेक्ट. अच्छा, दूसरा बात मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो गोल्ड बढ़ रहा है और गिर रहा है, बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार ड्यूटीज पे ट्वीकिंग कर रही है. जिस दिन सरकार को लग गया कि बाबू हो गया, ये ड्यूटी हट जानी है और ये धड़ल्ले से गिरेगा, तो मौका यही है. और अजीज साहब, आप इस पर थोड़ा और चर्चा हम लोग करेंगे. मैं एक बहुत बढ़िया ग्राफ अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, ये दिखाने के लिए कि गोल्ड की रैली झटकों में आती है. 10 साल कुछ नहीं करेगा, बैठ जाएगा, बढ़ेगा, उसके बाद 4-5 साल कुछ नहीं करेगा. तो अभी हम उसी दौर में हैं कि आप इसको प्लीज कम से कम 1% तो बेचिए. अच्छा अजीज साहब, एक बात और बताइए, क्योंकि आप लंबी अवधि के खिलाड़ी भी हैं और आपने भी लंबी अवधि से बाजार देखा है, कोई ऐसा कंपाउंडेड नंबर है, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई 15-17% तो है ही CAGR, अगर आप. If you like the video, do like, comment, share, and subscribe.